Hello, students. I hope you are healthy and doing great. Students, today I'll start chapter 10, that is Our Universe, from your English Reader book. Students, today we are going to study about universe. First we'll study that what is universe, then we'll study कि what are the components of universe क्या होता है, उसमें क्या क्या आते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो यूनिवर्स के अंदर आती है. तो चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्स? यूनिवर्स मीन्स पूरा ब्रह्मांड, एवरीथिंग दैट वी कैन फील, सी, टच एंड इवन द थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी with our naked eyes refers to universe. It consists of everything whatever is present in and around the earth, and not only around the earth but beyond that. It consists of life, that is living beings, planets, clouds, sun, moon, everything whatever we can feel, touch, see, the celestial bodies, everything includes in the universe. So, before you read, you must have wondered about the universe and the solar system. Do you know how many planets are there in the solar system? Children, do you know how many planets are there? There are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. Earlier Pluto was also a planet, but now it is not in the list. अब हम लोग प्लूटो को एक planet नहीं मानते हैं, बिकॉज वो planet होने के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं. उस रूल्स को, उस क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं करता है, वो फुलफिल नहीं करता है, इसलिए उसको planet हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं. सो बेसिकली राइट नाउ देयर आर 8 planets. Read the story to find about the universe. Children, there is a story, there is a very interesting story, and I definitely feel that you will love reading this chapter. Let's start. It's a very interesting story. One clear summer night, Rohan and his father were out taking a stroll. So once there was a clear summer night. During night, Rohan and his father they were out taking a stroll. Stroll means a slow walk. They went for a walk one night. Suddenly, Rohan spotted something whizzing down from the sky. And while they were walking slowly, Rohan, this boy, he spotted something whizzing down. Whizzing means whizzing is a sound. Shh, this sound. Shh means a quick movement. Quick movement हुआ sky में, and Rohan spotted that something was just falling down from the sky. He shouted loudly, "Look, Daddy, a shooting star!" Now, then he shouted that, "Daddy, look, there's a shooting star there." Rohan tugged at his father's sleeve and said, "Isn't the sky looking nice and bright with so many shining stars?" Rohan tugged. Tugged means he pulled his father's sleeve. He was just walking with his father. वो अपने पापा के साथ वॉक कर रहा था. एंड द मोमेंट ही सॉ दैट शूटिंग स्टार, उसने अपने पापा के स्लीव्स को पुल किया एंड अपने पापा से पूछा कि पापा, the sky is looking so nice now, with so many shining stars, because it was a clear summer night, and all the stars and various other things present at the sky were quite visible. Our teacher tells us that they are part of the universe. What is the universe? His father replied, "The universe is a huge, wide, open space. It came into being when there was a big explosion called the Big Bang, many million years ago." That sounds exciting, said Rohan. Please tell me more. So when Rohan asked his father that, Papa, what is universe? Our teacher has also told us something about the universe, but can you just elaborate? क्या आप मुझे अच्छे से explain कर सकते हो कि universe क्या होता है? Then his father replied कि universe is a huge, wide, open space. ये बहुत बड़ा space है, एक open space है. और ये तब स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ से आया था यूनिवर्स? इट केम इन टू बींग वेन देयर वाज अ बिग एक्सप्लोजन, जब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था बहुत मिलियन ईयर्स पहले, और जिसको हम लोग बिग बैंग कहते हैं. दैट रेफर्स टू दैट बिग एक्सप्लोजन, दैट रेफर्स टू बिग बैंग. और जब भी एक्सप्लोजन हुआ था तभी यूनिवर्स आया था. Then Rohan told that, okay, that sound interesting, means I have more interest on this. Please elaborate. Please tell me more about this.
Come, let's sit for a while and gaze into the sky as I tell you some fascinating facts about our universe, said Rohan father. Then father told that, okay, come, let's sit here and let's gaze into the sky. Means look into the sky, stare, घूरना, देखना, एकटक देखना, and I'll tell you some interesting facts about the universe. Well, these twinkling stars are all part of a galaxy. The universe has many galaxies, and each galaxy is made up of over millions of stars, dust, and gas. So, the father is explaining that these twinkling stars means these sparkling stars जो तारे चमक रहे हैं स्काई में, ये सारे गैलेक्सी के एक पार्ट हैं. एंड व्हाट इज गैलेक्सी? गैलेक्सी इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार सिस्टम्स. पूरा बहुत ऊपर गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स हैं और उसकी कलेक्शन को रेफर्स टू, एंड द कलेक्शन ऑफ दोज स्टार सिस्टम रेफर्स टू गैलेक्सी. द यूनिवर्स हैज मैनी गैलेक्सी, और यूनिवर्स में सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है बल्कि बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, और जितने भी गैलेक्सीज हैं सारे के सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स, डस्ट एंड गैस से बने हुए हैं. हर गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं. हम लोग स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, दे आर अनकाउंटेबल. बहुत सारे मिलियंस हैं दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जो कि स्टार्स, डस्ट और गैस से बने हुए हैं गैलेक्सी. वाओ, exclaimed Rohan. So Rohan became more excited. The universe is really big then, right, Daddy? Yes, explained Rohan's father. And we are a part of one of the many galaxies in the universe. And जहाँ हम रहते हैं वो एक पार्ट है, बहुत सारे गैलेक्सी से उसमें से एक गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं. Our galaxy is called the Milky Way. See, this is important. That the galaxy in which we live, हमारे जहाँ जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं उसे मिल्की वे कहा जाता है. There are over 100 billion stars in the Milky Way galaxy and the sun is just one of these stars. तो अब रोहन के पापा ने उसे और एक्सप्लेन किया और बताया कि मिल्की वे जिस गैलेक्सी में हम लोग रहते हैं वहाँ 100 बिलियन स्टार्स है, मीन्स उससे भी ज़्यादा, अबाउट 100 बिलियन स्टार्स हैं, और सन इज ऑल्सो अ स्टार. Then Rohan was quite excited after listening all this. Oh, tell me more, said Rohan. तो वो उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ती जा रही थी. उसने पापा से कहा कि पापा प्लीज टेल मी मोर अबाउट द यूनिवर्स. ओके, tonight I shall tell you about a small part of the Milky Way, the sun's family. So the father told that okay, I'll tell you about the sun's family. क्योंकि गैलेक्सी बहुत बड़ा है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, तो मैं तुम्हें एक पार्ट बताऊंगा उसका, एंड दैट इज मिल्की वे. That is called the sun's family. It is called the solar system. Planets and their moons, asteroids, meteoroids and comets all form a part of solar system. I shall explain each one of them so that you can understand the sun's family better. तो पापा ने उसके कहा कि जो गैलेक्सी है, जो सोलर सिस्टम है, वो उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के मून हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, मीटेरॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, और ये सारे सोलर सिस्टम का एक पार्ट है. एंड फादर ऑल्सो टोल्ड दैट आई विल एक्सप्लेन ईच वन ऑफ इट in detail so that you can understand it in a proper way. Okay. Asteroids and meteoroids can be called space rocks. Asteroids and meteoroids को क्या कहा जाता है? Space rocks कहा जाता है. Some asteroids are known to be as big as mountain, while a meteoroid can be as small as a grain of sand. तो asteroids बहुत बड़ा भी हो सकता है, बिल्कुल माउंटेन के जैसा बड़ा भी हो सकता है एस्टेरॉयड. एंड मीटरॉयड एक ग्रेन के जैसा हो सकता है, ग्रेन ऑफ सैंड, बिल्कुल बहुत छोटा, बहुत माइन्यूट. तो ये पापा उसके एस्टेरॉयड एंड मीटरॉयड के बारे में बता रहे हैं. कॉमेट्स आर बॉडीज ऑफ डस्ट एंड आइस. अब ये कॉमेट्स क्या होता है? ये बॉडीज है डस्ट और आइस का. ये डस्ट और आइस से बना हुआ है. दे ट्रैवल अराउंड द सोलर सिस्टम इन रेगुलर ऑर्बिट. और जो कॉमेट्स होते हैं वो सोलर सिस्टम में रेगुलरली ट्रैवल करते रहते हैं. तो उनका एक पाथ होता है, उनका एक रास्ता होता है. ऑर्बिट मीन्स पाथ, रास्ता. तो उस रास्ते के थ्रू वो हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. अ कॉमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल, बट दिस इज विजिबल ओनली व्हेन द कॉमेट्स ऑर्बिट पासिस क्लोज टू द अर्थ. अब पापा उसके कॉमेट के बारे में बता रहे हैं कि कॉमेट इज डिस्क्राइब्ड बाय अ लॉन्ग ल्यूमिनस टेल. ये एक शाइनिंग टेल की तरह होता है. ल्यूमिनस मीन्स शाइनिंग. सी यू कैन सी द पिक्चर. 1 second.
यू कैन सी द पिक्चर, दिस इज अ कॉमेट, ये एक शाइन कर रहा है, ब्राइट शाइन कर रहा है, और ये इसका एक टेल टाइप का इसको कंसिडर किया गया है. तो पापा इज टेलिंग दैट द कॉमेट इज कैरेक्टराइज, इट इज डिस्क्राइब्ड बाई अ लॉन्ग शाइनिंग टेल, बट इट इज विजिबल. इसको हम लोग तभी देख सकते हैं जब ये अर्थ के बहुत क्लोज पास करता है. उसका जो ऑर्बिट है, उसका जो रास्ता है, जब वो अर्थ के बहुत पास आता है तभी वो विजिबल है, वरना उसे हम नहीं देख सकते हैं. सी देर आर सो मेनी प्लैनेट्स, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, सबके पिक्चर्स दिए हुए हैं. 8 planets go around the sun, of which the first 4 planets are Mercury, Venus, Earth and Mars. तो उसके पापा बता रहे हैं कि देर आर टोटल 8 planets, और उसमें जो फर्स्ट 4 हैं, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, इनको ये फर्स्ट 4 planets हैं जो कि सन के अराउंड जाते हैं. मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट. मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि दूर से जब हम उसको देखते हैं तो उसका कलर रेड दिखता है. एंड समटाइम्स कैन बी स्पॉटेड विद अ नेक्ड आई. नेक्ड आई मीन्स आप अपनी खुली आंखों से, विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप या कोई भी डिवाइस, टेलीस्कोप, सॉरी नॉट माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, आप उसे देख सकते हो. These 4 planets are known as the rocky planets. ये जो 4 planets हैं, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, इनको रॉकी planets कहा गया है. एंड जो नेक्स्ट 4 planets हैं वो भी सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, लेकिन उनको रॉकी planets नहीं कहा गया है, उनको दूसरा कहा गया है, दैट वी विल लर्न नाउ. द नेक्स्ट 4 planets, दैट इज जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून, आर मेड ऑफ गैस, हैंस कॉल्ड जायंट्स. वो गैस के बने होते हैं, इसलिए उन्हें जायंट्स कहा जाता है. और दूसरे जो प्लैनेट्स थे फर्स्ट 4, दैट इज मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, उनको रॉकी प्लैनेट्स कहा गया क्योंकि बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स. यू कैन नॉट स्टैंड ऑन देम एज इट वुड बी सिमिलर टू ट्राइंग टू स्टैंड ऑन अ क्लाउड. लेकिन आप उनके ऊपर खड़े नहीं हो सकते हो, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून के ऊपर, बिकॉज उन पे आप क्या क्लाउड पे खड़े हो सकते हो? इज इट पॉसिबल टू स्टैंड ऑन द क्लाउड? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो सिमिलरली ये गैसेस और क्लाउड्स के बने हुए हैं, और गैस पे हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं. दैट इज वाई यू कैन नॉट स्टैंड ऑन इट. सैटर्न हैज सम ब्यूटिफुल रिंग्स. सी सो मेनी रिंग्स आर देयर. ये देखो, ये बहुत ब्यूटिफुल रिंग्स है सैटर्न के, rings around it. But did you know that these rings are made up of small particles of rock, dust and ice? और ये जो rings बने होते हैं सैटर्न के बिल्कुल इर्द गिर्द, वो किस चीज़ के बने हुए हैं? They are made up of particles of rock, dust and ice. Wow, this is very interesting, said Rohan. तो ये सब रोहन को बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में. He was very interested to listen to all this. The earth has one moon and is the only planet inhabited with living things. Many stars in the sky are like our sun, with their own planets and moons. Rohan's father further explained. तो उसके पापा ने further explain किया कि अर्थ के पास एक मून है, जो हम लोग मून को देखते हैं, and it is the only planet, और अर्थ एक ऐसा planet है जहाँ पे living थिंग्स रहते हैं, लाइफ पॉसिबल है. और किसी प्लानट में लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज वहाँ पे वाटर नहीं है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे मीन्स जो भी हमारे अर्थ के पास है, बाकी किसी प्लानट के पास वो सारे रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इसलिए वहाँ पे लिविंग बींग्स नहीं रह सकते हैं. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. और उसके पापा ने बताया कि बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं लाइक सन, और जिनके अपने अपने प्लैनेट्स हैं और अपने मून्स हैं. हाउ फैसिनेटिंग डैडी. डू यू थिंक दैट देयर कुड बी अनदर अर्थ समवेयर इन द यूनिवर्स? आस्क्ड रोहन. आई डोंट नो, मे बी यू कुड डिस्कवर दैट व्हेन यू ग्रो अप, स्माइल्ड रोहन्स फादर. तो रोहन ने कहा कि डैडी, इस यूनिवर्स में अर्थ के जैसा कोई और अर्थ हो सकता है क्या, उसी के जैसा? देन डैडी टोल्ड दैट आई डोंट नो रोहन, when you'll grow up, you might discover this. Discover means to find out. And then he smiled. So this was all about the universe. I hope that the chapter is clear to everybody. Thank you.